پاکستان اور افغانستان کے کرکٹ میچ کے بعد ہونے والے واقعات اور کشیدہ حالات کے پیش نظر پاکستانی اور افغان کمیونٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ چودھری شوکت علی اور اعجاز خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ شرپسند عناصر اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں، ان کے اوپر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ دیکھیے۔ ورلڈ کپ کے میچ سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر نفرت کا ایک طوفان امڈ آیا۔ میچ کے دوران جس قسم کے کشیدہ حالات پیش آئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، اس قسم کے واقعات کی روک تھام اور پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس لندن میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستان افغانستان کمیٹی کے اہم سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاکستان کمیونٹی کی صدارت چودھری شوکت علی، جبکہ افغان کمیٹی کی جانب سے اعجاز خان نے شرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں چھوٹے بچوں کے چھوٹی موٹی آرگومنٹ ہو گئی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ وی آر یونائٹیڈ ایز ایور بیفور۔ پاکستان زندہ باد، افغانستان زندہ باد۔ پاکستان عوام کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ تعلقات ہے، ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے، اور یہ جو ہو گیا ہے ہم لوگ ابھی اس مسئلے کو کاملاً ہم لوگ ختم کیا ہے، اور ہم اس راستے میں کام کریں گے انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ، اور ہمارا اور افغان کمیونٹی کا اور پاکستانی کمیونٹی کا کوئی پرابلم درمیان نہیں ہے۔ بڑا انتشار پھیل گیا ہے اور ہم اس پہ ہوا ڈال رہے ہیں، ہم لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی سوشل میڈیا کی جو پوسٹ ہیں اس کو آگے بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری قسماتی ایک تعلق ہے ہمارے ان کے ساتھ، مذہب کے ساتھ تعلق ہے، ثقافتی تعلق ہے، اخلاقی تعلق ہے۔ آپ مدینہ کے کیوں مدینہ اتنا مشہور ہے؟ کیونکہ وہاں پہ مہاجرین کو بھائیوں سے زیادہ کیا گیا۔ ہم اپنے کیے کرائے پہ 30 سال کی محنت ہے، ہمیں پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایجنڈے ہیں، اس کے پیچھے شرپسند عناصر ہیں اور ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فنڈنگ بھی ہے۔ اس دن کرکٹ میچ کے دوران جو شر اندازی ہوئی تھی وہ میں وہاں پہ تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کس کی غلطی تھی۔ وہاں پہ جو جھگڑا ہوا تھا میچ ختم ہونے سے بہت پہلے تھا، جنہوں نے کیا انہوں نے شر بنانے کے لیے کیا ہوا ہے، اور اس کے ہم جو ہے نا بہت بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ دل ہمارا بھی دکھا ہے وہاں پہ جو افغان اور پاکستانیوں کے درمیان یہ چھوٹے سے جو مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں چھوٹے کو مسئلے کو چھوٹا ہی رہنے دیں، اس کو بڑا نہ بنائیں، واٹس ایپ پہ جو ہے اس پہ دھیان نہ دیں اور آپس میں مل بیٹھ کے رہیں، اور انشاءاللہ جس طرح سے ہمیشہ سے آپ جو افغانستان ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور ہم افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں ہمسائے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ گراؤنڈ میں 27,000 کے قریب تماشائی تھے، لیکن کچھ شرپسند عناصر نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دونوں ملکوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ پاک افغان رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ایسے شرپسند عناصر پر گہری نظر رکھیں گے اور آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ رہیں گے تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور دیگر مسلم کمیونٹی کے قانونی، مالی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے مسلم پروفیشنل کونسل قائم کر دی گئی ہے، جس میں ڈاکٹرز، وکلاء، انجینئرز، آئی ٹی ماہرین، میڈیا پرسنز، تاجروں سمیت دیگر شعبوں کی سرکردہ شخصیات شامل ہیں۔ امجد علی سید کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ برطانیہ میں بسنے والے وکلاء، انجینئرز، آئی ٹی ماہرین، میڈیا پرسنز اور دیگر سرکردہ شخصیات نے مسلم کمیونٹی کو سپورٹ، پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے مسلم پروفیشنل کونسل کی بنیاد رکھی ہے۔ لندن میں ہونے والی تقریب میں متفقہ طور پر امجد علی سید کو مسلم پروفیشنل کونسل کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین امجد علی سید نے کہا کہ اس کونسل کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ سیاست اور فنڈ ریزنگ سے بالا تر ہو کر ینگ پروفیشنلز کو اوپر لانے اور اہم عہدوں تک رسائی کے لیے ان کی ہر ممکن امداد کرے گی۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم میں ہم لے کے آنا ہے، ان کے درمیان میں کوآپریشن اینڈ سپورٹ کو ہمیں کریٹ کرنا ہے، ان کو پروموٹ کرنا ہے، اور ان کو جو کونسل اور گورنمنٹ لیول پہ جو لاٹ آف اپرچونیٹیز ہیں، جو اس اپرچونیٹی سے لوگ غافل ہیں یا معلوم نہیں ہے ان کو دی جاتی ہیں، وہ اپرچونیٹی جو ہے نا ہمارے اس فورم کے ذریعے ان سب لوگوں تک پہنچے۔ امجد علی سید کا کہنا تھا کہ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی مناسب رہنمائی
रहनुमाई की जाए ताकि हमारे नौजवान भी अहम ओहदों तक पहुँच सकें। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि इस कौंसिल का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि यहाँ अरसा दराज से रहने वाले प्रोफेशनल्स अपनी कम्युनिटी के अफराद के कानूनी, माली और दीगर मसाइल के हल के लिए उनकी मदद कर सकें। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि कौंसिल में शामिल तमाम अफराद अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर खिदमत के जज्बे के तहत काम करेंगे। यकीनी तौर पर इस पर मुस्लिम कम्युनिटी बिलखुसूस पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो बड़े बेहतर तरीके से हल होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी माली मदद भी की जाएगी और कानूनी मदद भी। तो इसकी बहुत ज़रूरत थी कि ये सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये प्लेटफार्म एक मुहैया किया है। पाकिस्तानी जो यहाँ पे उनको बेशुमार मुश्किलात का सामना होता है, तो इस तरह की जो तंजीम है उनके लिए एक उम्मीद की किरण जो है वो साबित होगी और इनको भी चाहिए कि उन जो ऐसे लोग जो यहाँ मुश्किलात का सामना है जिनको उनसे रब्ता करें। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे यंग प्रोफेशनल इन्वॉल्व हैं और इससे कम्युनिटी को बहुत एडवांटेज होगा ताकि उनके तमाम बिज़नेस रिलेटेड लीगल प्रोफेशनल्स इकट्ठे हुए हैं, वो सब उनके मसाइल को सुनेंगे। एंड इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विद अ नेम दैट एवरी प्रोफेशनल इज़ देयर टू हेल्प कम्युनिटी। बड़ी अच्छी कोशिश की है इस पूरी तंजीम को इकट्ठा करने में। एंड सेकेंडली जो सारे प्रोफेशनल्स हैं, उम्मीद है कि सारे इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के हेल्प करेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे। इजलास से वाइस चेयरमैन डॉक्टर खालिद, डॉक्टर एहसान, मोहम्मद आफ्ताब, राजा जीशान, मोहम्मद जुनैद, नदीम अहमद और राजा एजाज अहमद ने भी खिताब किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो कम्युनिटी के तमाम मसाइल के हल के लिए अपने तमाम मसाइल बरोए कार लाएंगे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। जर्मनी के शहर ड्रेस्टन में मुल्क बदरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में अरबी, जर्मन और पाकिस्तानी अफराद कसीर तादाद में शरीक हुए। मज़ीद अहवाल असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन और लिप्सिक से गुज़श्ता दिनों 58 ऐसे पाकिस्तानी पनाह गज़ीनों को मुल्क बदर किया गया जिनकी सियासी पनाह की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी थीं। इन पनाह गज़ीनों को चार्टर्ड जहाज के जरिए जर्मनी से पाकिस्तान पहुँचाया गया। मुस्तकबिल में ऐसी मुल्क बदरी को रुकवाने के लिए जर्मनी के शहर ड्रेस्टन में एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया, जिसमें शुरका ने शहर की सड़कों पर एक रैली निकाली और मुल्क बदरी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरे का एहतमाम राना साकिब ने URA ड्रेस्टन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया था। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने हाथों में प्ले कार्ड्स और पोस्टर उठा रखे थे जिन पर मुल्क बदरी के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मुल्क बदर किए जाने वालों में माजूर अफराद के अलावा ऐसे अफराद भी शामिल थे जिनके सियासी पनाह के केस अभी अदालतों में चल रहे थे और वो फैसले के इंतजार में थे। मुल्क बदर किए जाने वालों में एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल है जिसकी जर्मन बीवी में से एक बच्ची भी है। दसियों पुछो बंदे चुकना शुरू कर देने ते बंदे भी ना वो चुकना शुरू कर छड़े ने जेड़े बेचारे कमा काजां ते लगे ने या जिन्हां दा कोई नेक साहब इत्थे लग गया, जिन्हां दा बच्ची बच्चा किसी दा इत्थे, वो बंदे ना चक के वापस हटना शुरू कर छड़े ने। जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी, चाहे कोई काम कर रहा है, चाहे कोई फारग है, चाहे कोई किसी के पास बेगम है डॉइच जर्मन, चाहे किसी के पास बच्चा है इस जर्मन किसी लड़की से, ये किसी को भी नहीं बख्श रहे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल से दरखास्त करें कि ऐसे पाकिस्तानी पनाहगज़ीन जो किसी भी तरह जर्मनी पहुंचे हैं उनकी मुल्क बदरी को रोक कर उन्हें जर्मन मुआशरे में जिम होने और अपना मुस्तकबिल संवारने का मौका दिया जाए। किसी की टोह लगाना, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करना और वीडियो रिकॉर्ड करना कानून के ख़िलाफ़ है, जिस पर आर्टिकल 14 का इत्तलाक होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कानरानी ने बार्सिलोना में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद से बात करते हुए कही। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। ये वीडियो जो सोशल मीडिया में मैंने देखा, मैं ख़ुद TV में नहीं देखा, कि जिस तरह बता रहे हैं कि एक जज साहब ने कोई फ़ैसला किया है और फैसले के बाद वो कहते हैं कि मैंने फ़ैसला दबाव के तहत किया है। तो हमारे कानों के लिए, हमारे आँखों के लिए ये नई बात नहीं है। ये हमारे कान, हमारे आँखें देख चुकी हैं और सुन चुके हैं कि 90s में इस तरह का वाक़या, मलिक क़य्यूम साहब जज थे, उनको भी किसी साहब ने फ़ोन किया था कि किसी एक सियासी लीडर को आप इतनी सज़ा दें, और वो रजिस्ट कर रहे थे। बिलाखिर वो किसी दोनों एक सज़ा पर राज़ी हो गए और वही सज़ा एक पॉलिटिकल सियासी लीडर को दी गई। और इसी तरह चीफ जस्टिस से कहा गया लाहौर हाई कोर्ट के वो ये केस फ़लाने जज को दे दें। तो ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, मगर उसके फिर बेनिफिशरी भी वही लोग हुए जिन्होंने इस तरह का एविडेंस क्रिएट किया। तो अब भी ये एक किस्म का उसी का तसलसल है। अब देखें उसकी एविडेंशियल वैल्यू किस तरह बनेगी, क्योंकि जब तक जज के पास केस है तो वो जज है, जब केस निकल जाए तो उस केस के बारे में जज की राय की कोई कानूनी अहमियत नहीं होती है। ये उसकी अपनी ज़ाती राय है
और मैं समझता हूँ जिस राय को जिस तरीके से हासिल किया गया है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में किसी का टो लगाना, किसी के ज़ाती ज़िंदगी में निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करना, उसकी चीज़ों को वीडियो करना, रिकॉर्ड करना उसकी मर्ज़ी के बगैर, ये आइन के आर्टिकल 14 है, 14 आइन का आर्टिकल है जिसमें प्राइवेट लाइफ की को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और किसी की गवाही को जो है वो ज़बरदस्ती न लेने की बात की गई है। ये तो ऐसे लगता है किसी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके प्राइवेट लाइफ में दखल देकर एक ऐसी गवाही क्रिएट की जा रही है जो आइन कानून से मुतसादिम है। तो इस तरह की चीज़ें अगर पहले रुक जाती, आज ये नौबत ना आती। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसकी कोई कानूनी अहमियत इसलिए नहीं है कि जज के पास कोई केस इस वक्त नहीं है, वो अपना फ़ैसला देकर फंक्टस ऑफिशो बन गए हैं। तो जब फंक्टस ऑफिशो बन गए तो उसकी अहमियत नहीं होती। ये सिर्फ किसी अपने केस में शायद इसको बतौर एविडेंस पेश करके, जिस तरह मलिक क़य्यूम का वीडियो पेश करके कोई फ़ायदा लेने की कोशिश की गई थी, शायद इस तरह की कोशिश हो सकती है, मगर ये कोई आज़ादाना राय नहीं हो सकती, क्योंकि जज साहब जब तक अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहेंगे और वक्त पे नहीं कहेंगे तो बेवक्त की रागनी जो है इसकी कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस से कोई इस तरह का मुतालबा करेंगे कि वो कोई सो मोटो लें इस वीडियो पे या इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे? मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात ये नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइवेट गुफ्तगू है और इसकी क्या हकीकत है, इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू भी नहीं है। चीफ जस्टिस साहब जो सो मोटो आम तौर पर नहीं लेते, अगर लेते भी बहुत बड़ा पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू हो, 184(3) में ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि एक इंटरेस्टेड पार्टी ने अपने हक़ में कोई एविडेंस क्रिएट करने के लिए काम किया है, अवाम के लिए नहीं किया है। ये मसला 22 करोड़ अवाम का नहीं है, एक शख्सियत, एक घराने, एक पॉलिटिकल पार्टी का तो हो सकता है, मगर 22 करोड़ अवाम के लिए मसला नहीं है। इसलिए इसका 184(3) के तहत जो सोमोटो लिया जाता है वो अवामी मफाद आमा का होता है। ये लिटिगेशन है जो कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसमें क्या फ़ैसले होते हैं कोर्ट्स का काम है। इस वीडियो की भी क्या अहमियत है क्या नहीं है कोर्ट डिटरमिन करेगा, मगर ये वीडियो मालूम होता है एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया है। जेब में पैसे नहीं और पेट भी खाली है तो कोई बात नहीं, कराची में ऐसा होटल भी है जहां आप पेट भर कर खाना खाएं और पैसे अल्लाह के अकाउंट से देते जाएं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट तो भर गया ना, पेट भर गया, मैं दुआ करूँगा अल्लाह का नाम से। तब भी साहिब सतात इस तरह की सोच रखें तो शायद कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा और सबकी हेल्प हो जाएगी। महंगाई के इस दौर में किसी भूखे को पेट भर खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। कराची के इलाके नाज़माबाद में वाक़या अलकौसर रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद जुनैद करते हैं मुस्तहिक मजबूर गरीब मजदूरों की मदद और खिलाते हैं खाना अल्लाह के अकाउंट से। उनका मानना है कि हर इंसान को अपनी जेब में से उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो उसके मुस्तहिक हैं। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोगों को तलाश करें जो भूखे भी रहते हैं और मांग नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। कम से कम उनको खाना मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये एक सवाब का काम भी है। रेस्टोरेंट पर खाना खाने और लेने वाले भी मोहम्मद जुनैद की इस नेकी को खूब सराहते हैं। एक बंदा बगैर शर्मिंदगी के जो है ना होटल पे सुकून से आके खाना खा के जा सकता है, कि उसको पता है कि भाई अल्लाह के नाम पे बहाना उसने खाना है, बिल वाला आएगा उसने बोलना है, पैसे उसने बोल देना है भाई काट दो अल्लाह के अकाउंट। ये सदका जारी है और आजकल के फ़ी ज़माने में तो ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कम हो गए। बहुत अच्छा जज्बा है, इस तरह देख के औरों को भी सीखना चाहिए और ये सब जो है ना सिलसिला आगे से आगे चलना चाहिए। मुनासिब दाम में बेहतर खाने के इस होटल से अल्लाह के अकाउंट से पैसे वाली ऑफर से यौमिया कई अफराद खाना खाते हैं। इंसानियत का दर्द लिए सफ़ेद पोश अफराद का भरम रखने वाले मोहम्मद जुनैद की ये काविश माशरे की वो तस्वीर है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कैमरामैन अमर खान के साथ सबनू 92 न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।